Students, now you know what real numbers are. Means now you are in a position to define a real number. It is a combination of rational and irrational numbers. Even I have shown you that what are the physical appearance of irrational numbers. Though the examples were few, but I had told you that a number like this, a number like this, a number like this, a number like this are all examples of irrational numbers. They are all examples of irrational numbers. In fact, a very well known number pi is also an example of irrational number. The very well known number pi is also an example of irrational numbers. So there are n amount of infinite irrational numbers. And all these rational and irrational numbers lie on a number line. You know what a number line is? You have drawn this number line earlier. This whole number line comprises of all rational, that is of all integers, all whole numbers, all natural numbers, plus all irrational numbers do reside on this number line. Hence, this number line in practical way, it is known as real number line. This number line is known as real number line. Why it is known as real number line? Because it houses all rational and irrational numbers, and real numbers are combination of all the rational and all the irrational numbers. This is the real number line. The main center part is 0. It comprises of 1, 2, minus 1, minus 2, rational numbers, irrational numbers. You have drawn these numbers on the number line. Means in class 7th and 8th you had exercises regarding plot a rational number on a number line. This year you have an exercise or questions as plot irrational numbers on number lines. That we will see on a later part, that what are the irrational numbers which to be plotted on number line. That will come at a later part. But what I tell you now is, you won't be calling a number line by a name just as a number line. The proper name of a number line is real number line. For a 9th class student, you should not call a number line by the name number line. The proper name is real number line. So if it is real number line, what kind of numbers are living on it? All the rational, means if you are explaining it, you will be saying all the rational numbers and irrational numbers are housing inside this number line. Means एक number line में सारे के सारे rational और irrational numbers accommodated रहते हैं. Okay, now coming to the irrational numbers. Rational numbers को add subtract करना, integers को add subtract करना, उनका arithmetic is almost clear to us. हमने 8th class तक इस arithmetic को बहुत exhaustively solve करा है. हमको मालूम है कैसे दो rational numbers add होते हैं. If you have two rational numbers like this, you add them just like that. And if you have two integers, minus 3 plus 5, या minus 3 minus 7, you all know how to do these things, है ना. Rational numbers को कैसे add करना, integers को कैसे subtract करना या add करना, ये arithmetic is very well known to you. What new you will learn in class 9th? आप ये सीखेंगे कि irrational numbers के arithmetic को कैसे handle करना. They are not quite as straight as an irrational number. मतलब for an example, अगर मैं आपके सामने √2 प्लस √2 लिख दूं, तो इसका आंसर आप √4 नहीं लिख सकते. That is the wrong answer. If you give me an answer as this is equal to √4, this is a wrong answer. √2 plus √2 is not equal to √4. Similarly, अगर मैं आपको √2
और √3 लिख के दूं और इसका आंसर देने के लिए कहूं तो आप इसका आंसर मुझे √5 नहीं दे सकते। इसका आंसर मुझे √5 नहीं दे सकते। मतलब आपको ये बात समझ में आ रही है कि इरैशनल नंबर्स का अरिथमेटिक, इरैशनल नंबर्स को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये जो अरिथमेटिक के 4 ऑपरेशंस हैं, इनको करना आपको क्लास 9th में सीखना पड़ता है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम में नंबर्स का एक ऑल टुगेदर नए नंबर सेट का एडिशन है। रैशनल नंबर्स को ऐड करते वक्त आपने ये बात सीखी थी कि डिनोमिनेटर समान करना पड़ता है तो ही रैशनल नंबर्स ऐड होते हैं। तो इसके ऑपरेशंस आपने सीखे छोटी क्लासेस में। इंटीजर्स को ऐड करना सीखा कि कैसे इंटीजर्स आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट होते हैं। इरैशनल नंबर्स मतलब ऐसे दिखने वाले नंबर्स को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा। सबसे पहले मैं इरैशनल नंबर्स के बारे में आपको थोड़ा सा और बताता हूं। इरैशनल नंबर्स के अंदर ऐसे जो नंबर्स आते हैं, मींस √2, √3, √5, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 7 या कोई भी नंबर, ऐसे नंबर्स को कहा जाता है सर्ड्स। नंबर्स लाइक दिस आर नोन एज सर्ड्स। इरैशनल नंबर के अंदर सर्ड्स आते हैं। इरैशनल नंबर के अंदर, जैसे रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो इरैशनल नंबर की जो कैटेगरी ऑफ नंबर्स रहते हैं उनके अंदर सर्ड्स आते हैं। किनको कहते हैं मैथमेटिक्स में सर्ड्स? अगर इस रूट के साइन के अंदर, अगर इस रूट, ये आपको अंडर रूट का साइन दिख रहा है, ये सिंबल दिख रहा है अंडर रूट का, अगर इस अंडर रूट के सिंबल के अंदर कोई नेचुरल नंबर आके बैठा हो तो जो नंबर तैयार होता है उसको हम इरैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन हर नेचुरल नंबर नहीं। अगर मैं इस अंडर रूट के अंदर 4 लिख दूंगा तो ये एक इरैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट का 4 का आंसर आता है 2, और 2 कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है, तो 2 क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। ऐसे नंबर्स, जनरली प्राइम नंबर्स, अगर मैं आपसे थोड़ा प्रिसाइसली बात करूं, अगर इस अंडर रूट के सिंबल के अंदर प्राइम नंबर्स आके बैठे हुए हैं तो ऐसे जो नंबर्स तैयार होते हैं, जैसे ये √2, √3, √5, क्यूब रूट ऑफ 3 या क्यूब रूट ऑफ 5, ऐसे नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स या सर्ड्स कहते हैं। सर्ड के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सिंबल के अंदर जो नंबर है वो रैशनल होना चाहिए। अगर मैं ऐसा नंबर आपको लिख के दे दूं कि ये सर्ड नहीं है, दिस इज नॉट अ सर्ड, क्योंकि इस अंडर रूट के साइन के अंदर जो नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ऐसा नंबर सर्ड नहीं कहलाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर जो नंबर बैठा हो वो रैशनल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू व्हाट इज द अरिथमेटिक ऑफ सर्ड्स। सर्ड्स पे कैसे काम करते हैं और सर्ड्स के ये अंडर रूट का अरिथमेटिक हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो नाउ आई एम टेकिंग द टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक ऑफ सर्ड्स। देखिए, ये सर्ड का एक जनरल नंबर है जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5 इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्ड। अब ध्यान से देखिए,
ये मैंने आपके सामने एक सर्ड का जनरल फॉर्मूला लिखा है या जनरल रिप्रेजेंटेशन शो करा है, और इस रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सामने लिखा है। अब मैं सर्ड में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हर चीज का क्या मतलब रहता है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये वाला, इसको नॉर्मल मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम सब अंडर रूट कहते हैं। दैट इज नॉट रॉन्ग, है ना, इसको अंडर रूट कहते हैं, लेकिन फॉर अ क्लास 9th student he should know that this symbol out here is known as symbol of radical. इसको रेडिकल कहते हैं। ये जो सिंबल है, ये जो मैं ऐसा सिंबल बनाता हूं, इसको रेडिकल कहते हैं। इसके अंदर जो नंबर लिखा है, ये जो नंबर ए दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे 5, इसको कहते हैं रेडिकैंड। दैट इज नोन एज रेडिकैंड ऑफ सर्ड। इसको कहते हैं रेडिकैंड। ये जो नंबर यहां दिख रहा है n, मतलब यहां पे 3, n को कहते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड। n को कहते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड। अगर मेरे पास ये एग्जाम्पल है लिखा हुआ, तो मैं इस एग्जाम्पल को पढ़ूंगा कैसे? आई विल बी रीडिंग इट एज क्यूब रूट ऑफ 5. I will be reading it as cube root of 5, where 5 is acting as radicand. 5 is acting as radicand. The order of this surd is 3. The order of this surd is 3. अगर आपके पास किसी ने कभी ऑर्डर लिख के नहीं दिया और ऐसा लिखा, इसको जनरली आप कैसा रीड करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 5. अगर ऑर्डर यहां पे नहीं लिखा हुआ है तो यू टेक इट एज ग्रांटेड कि इसका ऑर्डर 2 है। अगर ऑर्डर 2 नहीं लिखा है, अगर ऑर्डर की जगह पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये आपको मान के लेना पड़ता है कि वहां पे 2 लिखा है। और अगर 2 की जगह कोई और ऑर्डर होगा तो सामने वाला आपको लिख के दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो यू कंसिडर दिस एज अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 2. You consider this as a surd of order 3. अगर मैं ऐसा लिख के एक एग्जाम्पल छोड़ दूं, इसको मैं रीड कैसे करूंगा? 4th root of 7. The order of this surd is 4. The radicand out here is 7. So this is the radicand, this is the order of the surd, and this symbol out here is known as radical. अब देयर इज एन ऑप्शन। ये जो नंबर मैंने आपके सामने लिखकर बताया है, इट इज लाइक दे आर वियरिंग अ कैप. यू आर, सिंस द समर सीजन इज गोइंग ऑन एंड वी डू वियर कैप व्हेन वी डू गो आउट. सो देयर इज अ चॉइस फॉर अस. आप जब भी चाहो आप अपनी कैप उठा के रख सकते हो, और जब भी आपको लग रहा है आप वापस अपनी कैप पहन सकते हो. ऐसे नंबर्स जो कि सर्ड के सिंबल के अंदर है, जो कि एग्जांपल्स मैंने दिखा है, ये नंबर को भी ये चॉइस रहता है. मींस इफ आई कंसीडर दिस सिंबल एज अ कैप, तो ये नंबर ये कैप उतार कर भी रख सकता है. कैप उतार के रखने से हम बदल तो नहीं जाते. अगर आप अपनी कैप निकाल के बाहर रख दोगे तो यू डोंट चेंज एज अ पर्सन. आप अपने आप आइडेंटिटी नहीं लूज करते. सिमिलरली ये नंबर के पास भी ये फ्रीडम रहती है कि वो अपनी ये वाली कैप उतार कर बाहर रख सकता है एज पर दी रिक्वायरमेंट. जब जरूरत पड़ रही है तब. तो वो कैसे अपनी कैप बाहर निकाल के रखता है? इस तरीके से, a की पावर 1/n. मतलब अगर मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 5 लिखा है, जो कि रेडिकल के सिंबल के साथ लिखा है, और मुझे किसी ने बोला इसको रेडिकल के सिंबल से फ्री करो, फ्री दिस पर्टिकुलर नंबर फ्रॉम द रेडिकल साइन, तो आई विल बी राइटिंग इट एज इक्वल टू 5 की पावर 1/3, a की पावर 1/n. ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. आई अगेन राइट इट आउट हियर. NA. The same formula gets converted a की power 1/n. The same formula gets converted a की power 1/n.
मतलब रेडिकल, दिस इज अ रेडिकल साइन विद ए विद इन इट, दिस इज अ नेचुरल नंबर, और यहाँ पे n है, ऑर्डर ऑफ द सर्ड है। अगर ये नंबर चाहे तो ये रेडिकल साइन को रिमूव करके ऐसे लिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ऐसा लिख के दूं 4th रूट ऑफ 3, तो यू कैन राइट इट एज 3 की पावर 1/4। These both the things are one and the same, ये दोनों चीजें एक ही जैसी हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, दे आर वन एंड दी सेम। सिर्फ दिखने का फर्क है, विजिबिलिटी में दिखने में अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन इट इज वन एंड दी सेम थिंग। तो कई बार क्वेश्चन में हमें जब क्वेश्चन आता है तब हमें ऐसे ही करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, या फिर हमें उसको चेंज करना पड़ता है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? सो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ अ सर्ड। सर्ड इरेशनल नंबर्स के अर्थमेटिक को सॉल्व करने का सबसे पहला रूल यही है जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया, कि कैसे कोई नंबर अपनी कैप बाहर निकाल के रख सकता है, और अगर कैप बाहर निकली हुई है तो वापस कैप ऐसा पहन सकता है। मतलब अगर मैंने आपको ऐसा नंबर लिख के दिया तो यू नो इट कि मैं इसको ऐसा करके लिख सकता हूं। इज दैट क्लियर?